students, good morning. In previous lecture, previous class already discussed about the spherical mirror. Okay, what do you mean by spherical mirror? Okay, and what is its type? How many types of spherical mirror? Understand? In previous class already discussed about the two types of spherical mirror. You know about now, just like you see here, one is the what concave mirror and second is the convex mirror. And also you know about what do you mean by concave mirror? That's reflecting part is inward. Okay, curved inwards. Understand, that is known as concave. And convex what is? That's reflecting part is curved outward. Curved outward. Okay, that is known as convex mirror. Okay, तो we had discussed in previous class. Okay, already. Understand? हम डिस्कस कर चुके हैं. And already we discussed about the what do you mean by related with the some important basic term. Okay, some important basic term related with the spherical mirror. Just like you know about now, this is the height of the what? Height of the mirror, a spherical mirror is known as height. Also you can say this is aperture. Aperture. Height of the image is known as spherical mirror is known as aperture. This is the pole. Okay, center of the center of the spherical mirror. ठीक है, that is known as pole. Here is the focal length and center of curvature. Okay, distance between the pole and center of curvature is known as radius of curvature. What do you mean focal length? Distance between the what? Pole and focus is known as focal length. What do you mean the principal axis, center of curvature? So all these important terms in previous class already we discussed. Okay, no problem. So we already discussed about that important terms related with the spherical mirrors. Understand? Already we discussed. Just like you have to see here now. See these figures. What does this figure say? This figure said about what? This is the which mirror? You know about now? This figure is what? Concave or convex? So this is the concave mirror. Why? How can you say that this is concave mirror? Because ray of light passing through the internal parts, striking on the internal parts. Understand? That is curved inward. Their reflecting parts is curved inward. Okay, and ray of light when strike on their internal inward, curved inward, then it's directly passing through their focus. Understand? So this is known as concave mirror. Understand? In this case, what happened? In ray of light coming from the source, from infinity, striking on the where reflecting part of the concave mirror, then it's also passing through the focus. कि जहाँ कहीं पास करेगा, जब भी कोई ray of light आएगी, तो after striking on the reflecting part of any spherical mirror, okay, just like this is a concave mirror, तो always passing through the focus. जब भी पास करे तो कहाँ से? फोकस से. जैसे यहाँ भी से भी यहाँ का है, कहाँ से पास कर रही है? फोकस. डायरेक्टली पास थ्रू द फोकस. ठीक है, तो इन दिस केस कहाँ पे हो रही है? वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज? तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस कहाँ? एट फोकस. कहाँ से बन रही है इमेज? फोकस पे, क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ पे मिल रही है? ऑल रेज ऑल रेज इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट एट द फोकस. सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट द फोकस. ओके, एंड इमेज कैसा है? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट. और कैसा है? इज सो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट. बहुत ही छोटा है साइज. अंडरस्टैंड? और कैसा है ये? कैसा है? तो ये क्या आपका इरेक्ट होगा? वर्चुअली है, रियल एंड इरेक्ट. कैसा है ये? रियल एंड इरेक्ट. यू सीन ना? तो इज आल्सो गिवन द व्हाट इज द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सो ऑल इज गिवन इन दिस फिगर. अंडरस्टैंड? In this way there is observation many case of the bright image there. So when sun is light from the converged at a point, the sharp bright spot by the mirror. In fact, that spot of light sun sheet of paper, you know about now, all are conserved at the focus. Okay, and that spot point, this point is focus of the concave mirror. यही जो क्या होती है? focus of the concave mirror. जो all lights है क्या करती है? accumulate, that is intersection at that point. कहाँ पे intersect कर रही है? all rays of light directly at focus. Understand? So all is given that given all these here. The distance of the image and position of the mirror gives the approximately value of focal length of the mirror. कि focal length of mirror क्या है? What is the focal length of mirror from the pole and focus? Okay, already discussed in previous class already. No problem. Already discussed about what is principal axis. Reflector appeared from the point of principal axis. Okay, what is the focal length? Mirror of the principal focal length. No problem in this case. And you know about already we discussed about what the relation between what? Between the radius of curvature and focal length. Radius of curvature is twice the focal length. Okay, radius of curvature is twice the focal length. Already we discussed in previous class all these things. No problem about aperture. Okay,
radius of curvature, center of curvature, already all things we have to discuss, no problem. Okay, so today we'll discuss about the image formation by spherical mirror. Okay, today this next topic, new topic, that is image formation by spherical mirror. Spherical mirrors you know about ना कि that is concave या convex. तो first we will discuss about the है ना concave mirror. तो all of you know about ना कि image formation by plane mirror कि है ना कि what is the image, what is their nature, what is their size, what is their shape, है ना what is their nature. तो ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास कि what is the nature, okay, position, formation of image by plane mirror. You know about ना कि सेम साइज ऑफ द है ना ऑब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, और क्या होता है फार बिहाइंड ऑफ द है ना प्लेन मिरर, अंडरस्टैंड देयर क्या डिस्टेंस, एंड क्या होता इन्वर्टेड, क्या हो रहा था, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या था, तो क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली मीन्स इन अबाउट लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर राइट, ओके, एंड राइट इन लेफ्ट अपीयर ऑन लेफ्ट, तो दैट्स इज लेटरली इन्वर्टेड. तो वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लास, no problem. So today we'll discuss about the है ना what about the concave mirror, understand what is concave mirror, है ना formation of image by concave mirror. So there is some point, okay, what is their position, what is their nature, what is their character, okay, just like a six है ना six position are given there, okay, there is the many position of the six of the object, six cases formation of image by concave mirror given there ना. First कि at infinitive if any objects are placed at infinitive, okay, in a concave mirror. concave mirror में हम रख रहे हैं क्या infinitive पे objects, position of the image कहाँ फॉर्म होगी at focus, okay, size of the image क्या होगा highly diminished point size, एकदम point size बनेगा है ना, और कैसा होगा nature of image real and inverted, और कैसा होगा real and inverted. just like see the example here. this example is also give the है ना first case. This is the first formation of image by concave mirror. You know about ना कि when a ray of light कहाँ placed at infinitive, infinitive से आ रही है coming from the infinitive, after the stacking on the reflecting part of concave mirror, then it's also pass through the focus, pass कर रही है ना focus के, तो ये all ray of light converge at the focus, intersect at the focus, तो image कहाँ पे form हो रही है, तो formation of image at the focus है ना, और कैसा बन रहा है point size इमेज है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज साइज ऑफ द इमेज एट पॉइंट साइज, ओके, कैसा है पॉइंट साइज है, और कैसा बन रहा है ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब बहुत ही छोटा इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका यू है ना, तो ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और नेचर कैसा है इसका, व्हाट इज द नेचर ऑफ, तो क्या होगा इरेक्ट एंड सॉरी कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड. रियल का मतलब क्या होगा वास्तविक बनेगा, और इन्वर्टेड होगा. इन्वर्टेड मतलब क्या, ये ए बी है आपका ना ऑब्जेक्ट, क्या है ए बी, तो यहाँ क्या बनेगा बी और ए, इन्वर्टेड है ये. इन्वर्टेड का मतलब क्या उल्टा, ये ए बी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो कैसा बनेगा बी और ए, तो ये होता है इन्वर्टेड, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम. तो वही जो आपका सिक्स केस यहाँ पे दिया हुआ है कैसा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड. सेकंड की पोजीशन देखिए, ओनली यू हैव टू लर्न दिस सिक्स है ना, सिक्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, six cases of the object formation of image by concave mirror. If you learn these six, okay, then you can easily draw the ray diagram, okay, of formation of image by concave mirror, understand. This is second case कि when object is placed at beyond C, मतलब C के पीछे, C मतलब center of curvature, तो when we okay placed at object beyond C, then where is the position of image, तो position of image is between F and C, कहाँ पे image का formation होगी focus and center of curvature. कैसा होगा साइज डिमिनिश्ड छोटा होगा, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट हाई डिमिनिश्ड. नेचर कैसा होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, ओके. जैसे लेट्स सी सेकेंड एग्जांपल, ओके देखिए यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट केस है ना, हाईली फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय है ना फोकस. दिस इज द सेकेंड केस फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर. See here, you know about ना how is the formation of कि when ray of light passing through the है ना when object is placed at beyond the C के क्या है पीछे है ऑब्जेक्ट ए बी, क्या हुआ आफ्टर द स्टैकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द कनकेव मिरर, देन क्या हुआ पासिंग थ्रू द फोकस अनदर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके. लेफ्ट दिस बिफोर डिस्कसिंग है ना दिस वी ऑलरेडी नो अबाउट द सम है ना टर्म एंड कंडीशन.
ओके कि रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द वेयर है ना, फ्रॉम द विच इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस, ओके या प्रिंसिपल एक्सिस. तो फर्स्ट वी विल ऑलरेडी डिस्कस है ना, दैट्स अबाउट. देन आफ्टर वी विल डिस्कस ओके फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय स्फेरिकल मिरर by using ray diagram कि how can we represent a ray diagram, understand. तो you know about ना कि spherical mirror by drawing by ray diagram कि how can we है ना draw a ray diagram, ठीक है. how can we draw a concave mirror, convex mirror, you know about. तो फर्स्ट वी नो अबाउट ना कि शेयर द है ना मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर कि हाउ कैन वी मेक ए रे डायग्राम. जैसे फर्स्ट गिवन देयर फर्स्ट केस है ना, तो द इंटरसेक्शन एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट साइज है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट. टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ये क्या करते हैं, इमेज का है ना पोजीशन ऑफ इमेज शो करते हैं. दैट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड एट लोकेटिंग द इमेज. तो ये दोनों में से क्या करते हैं, इमेज को लोकेट करते हैं. जैसे देखिए सी दिस इज द फर्स्ट केस कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे कहाँ से आएगी, सीधे ना कि ए रे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यू नो अबाउट ना कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. You have to see na. After reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. ओके देखिए दिख रहा है ना, कहाँ से पास करेगा, जब भी कनकेव मिरर में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा आप पासिंग थ्रू द फोकस, और एक नहीं कहाँ से पास कर रही है, फोकस. बट एक एक्चुअली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनदर रे ऑफ लाइट है ना डायरेक्टली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द रिफ्लेक्शन रे, मतलब आई इक्वल टू आर, यू नो व्हाट ना. दिस इज द केस ऑफ कनकेव मिरर, कॉनकेव. अब क्या हम बात करें कॉन्वेक्स, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. ए रे ऑफ लाइट है ना कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, देन क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक. बट इट सिम्स दैट अपीयर क्या हो रहा है कि वर्चुअली इट्स पासेस थ्रू द फोकस. कहाँ से डाइवर्ज कर रही है, इंटरसेक्ट एट द फोकस, अंडरस्टैंड, फोकस पास कर रही है ना. ओके एंड अनदर रे ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी रिफ्लेक्टेड हो रही है, आई इक्वल टू आर, आई है ना, यहाँ आई है या आर है. तो ये भी क्या जग रहा है, जस्ट है ना पासिंग थ्रू द है ना कन्वेक्स मिरर. सी ना कि केस ऑफ कन्वेक्स है ना कन्वेक्स मिरर दिस इज इलस्ट्रेटेड, दिख रहा है ना, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में इसका इमेज फॉर्मेशन होगी. ओके पॉइंट साइज. सेकंड केस क्या है कि रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ए रे पास करेगी प्रिंसिपल फोकस डायरेक्टली, डोंट ओके डोंट क्या रिफ्लेक्ट है ना आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कनकेव मिरर. ये वहाँ से पास नहीं करेगा डायरेक्टली, ये कहाँ से डायरेक्टली पास करेगा, ये पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस डायरेक्टली, ये पास कहाँ से करेगा, प्रिंसिपल फोकस. ओके ऑफ ए कनकेव मिरर और रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, डायरेक्टली ये पास करेगा. एंड आफ्टर द पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कनकेव मिरर देन इट्स रिफ्लेक्ट बैक, अंडरस्टैंड. तो ये सेकेंड केस है कि डायरेक्टली कहाँ से पास करेगा, ये रे ऑफ लाइट थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस, अंडरस्टैंड. देखिए इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर यहाँ भी क्या हो रहा है, एयर ऑफ लाइट कमिंग है ना रिफ्लेक्ट बैक, बट ये कहाँ हो रहा है डायरेक्टली है ना, इट सिम्स दैट कि डायरेक्टली कहाँ से पास कर रही है, फोकस. ओके एंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये भी दिखा रहा है क्या इन बोथ द केसेस, ओके कनकेव एंड कन्वेक्स. थर्ड केस क्या है, व्हाट इज द थर्ड केस कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ से इस रेज में क्या होगा, डायरेक्टली पास कहाँ भी कर सकता है, रे ऑफ लाइट दे कैन पास था ना डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके और डायरेक्टेड इनवर्ड्स ऑफ द है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. ये कनकेव मिरर की बात है और ये क्या होगा, कन्वेक्स मिरर. ये सी हो ना कन्वेक्स मिरर. ये इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली रे ऑफ लाइट कमिंग, तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से क्या हुआ, आफ्टर द स्ट्राइकिंग दे रिफ्लेक्ट बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं. लेकिन इट सीम्स दैट ये ऐसा प्रतीत हो रहा है वर्चुअली क्या हो रहा है कि इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली, सी ना. तो दिस इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड दिस इज द केस ऑफ कनकेव मिरर, अंडरस्टैंड. तो द लाइट रेज आर कम है ना बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ में क्या होगा, रिटर्न हो गया. देखिए यहाँ पे आफ्टर द स्ट्राइकिंग अगेन है ना बाउंसिंग बैक, उसी पाथ में क्या हो गया, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्ट बैक. तो फॉल ऑन द मिरर अलोंग विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यही नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या हो गया, बाउंसिंग बैक. फोर्थ केस क्या है आपका, दिस इज द फोर्थ केस ऑफ है ना रे डायग्राम ऑफ मिरर कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या हो रहा है कि कोई भी रे इंसिडेंटली ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, कहाँ पे आएगा, ये डायरेक्टली फॉल्स टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, पोल. डायरेक्टली रे ऑफ लाइट कहाँ पे बाउंस करेगा, ये पोल पे.
ओके, ऑन द कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, और वहीं से डायरेक्ट क्या हो गया आफ्टर द, है ना, स्ट्राइकिंग ऑन द पोल, देन ये रिफ्लेक्ट बैक, ओके, ऑब्लिकली। तो द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहीं से क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक ना स्ट्राइकिंग ऑन द दैट पॉइंट पोल एंड दैट रिफ्लेक्ट बैक, दैट इज क्या है आई एंड देयर इज द आर, है ना। ये क्या है आपका आई एंगल, आई इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये भी फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। इन दिस केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, सी हियर, this is the reflecting part of the convex mirror, a ray directly fall into the strike on the pole and directly reflect back, here is also I equal to R, है ना, follow the laws of reflection, understand। तो marking equal angles the principal axis, तो it's also show that है ना directly pass through the pole and it's also show obliquely equal angles, understand। तो इन दिस वे अबव केसेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लो, तो इन ऑल केसेस वी हैव टू सी ना, क्या हम देखें अभी, वी हैव टू सी ना कि इन ऑल केसेस फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना, बाय कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम, ओके, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इधर डायरेक्टली द प्रिंसिपल ऑफ फोकस, या डायरेक्टली ऑब्लिकली टू द सेंटर ऑफ द मिरर, दैट इज पोल, डायरेक्टली। तो देन क्या होगा, इन ऑल केसेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, इज फॉलो हो रहा है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। तो अब नाउ डिस्कस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कि कैसा कैसा है ना, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो यू हैव टू सी ना कि देयर इज 6 केसेस देयर, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे। कैसा होगा इसका साइज कनकेव मिरर में, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है ना, हाईली डिमिनिश्ड, और कैसा होगा, इरेक्ट एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड, ओके, जस्ट लाइक ये डिस्कस कर चुके थे ना, ऑलरेडी वी डिस्कस ने प्रीवियस मोमेंट। देखिए देयर इज द 6 केसेस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, जब भी बनेगा इसमें क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, अंडरस्टैंड। तो ऑल दिस ना 6 पोजीशन आर देयर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर इमेज फॉर्मेशन गिवन हियर, ओके। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, सी के पीछे है ऑब्जेक्ट, दिख रहा है ना, आफ्टर द स्ट्राइक ऑन ए रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द कनकेव मिरर डायरेक्टली पास थ्रू द फोकस, और हम क्या जानते हैं कि डायरेक्टली अनदर रे डायरेक्टली पास थ्रू द प्रिंसिपल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, डायरेक्टली ये मुड़ गया उसी में, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंसिंग बैक। तो कहाँ पे ये स्ट्राइक किया, बोथ आर इंटरसेक्ट टू, है ना, बिटवीन द सी एंड एफ, कहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक किए, इंटरसेक्ट टू ईच अदर बोथ, ये दिस पॉइंट कहाँ पे है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ पे, बिटवीन द सी एंड एफ, कैसा साइज है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, और कैसा है, हाउ डिमिनिश्ड है ना, इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है ये, स्मॉल, ओके, बट क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे कैसा फॉर्म होगा, रियल होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मीन्स ये ए बी है लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बी है, understand, this is the second case। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज गिवन देयर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, क्या है थर्ड, व्हाट इज द थर्ड केस। तो थर्ड केस इज गिवन देयर कि व्हेन ए ओके व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यही होगा रिफ्लेक्टिंग, है ना, स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कनकेव मिरर डायरेक्टली पास थ्रू द फोकस एंड वन रे डायरेक्टली पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ओके, आफ्टर द, है ना, स्ट्राइकिंग ऑन प्रिंसिपल फोकस डायरेक्टली, है ना, रिफ्लेक्ट बैक, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, है ना, आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग बैक दिस रे, तो कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, दीज आर स्ट्राइकिंग ऑन द वेयर, प्रिंसिपल फोकस एंड अनदर द प्रिंसिपल फोकस अगेन डायरेक्टली, तो दिस विल फॉर्म फ्रॉम वेयर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रही है इमेज, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, इज इक्वल टू द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, सेम साइज है, बट क्या आपका रियल है और इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बट सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, एट सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, दिस इज द थर्ड केस। फोर्थ केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, दिख रहा है ना ये, आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग पार्ट डायरेक्टली पास थ्रू द फोकस प्रिंसिपल फोकस एंड अगेन रे ऑफ लाइट कमिंग कहाँ से आ रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, दिख रहा है ना, ओके, अनदर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली
तो बोथ आर इंटरसेक्ट टू वेयर, इंटरसेक्टिंग बोथ रेज, ओके, इन दैट पोजिशन, है ना, हो रही है कि नहीं। तो कैसा यहाँ पे बन रहा है इमेज, कहाँ पे फॉर्म हुआ, बियॉन्ड द सी, कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है इमेज का, बियॉन्ड द सी। और कैसा है इमेज, कैसा है ये, लार्ज इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कंपेयर में क्या लार्ज है, बट क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा फॉर्म होगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है दिख रहा है ना बी ए, और रियल है बट इन कंपेयर ऑफ क्या है लार्ज, इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है लार्ज है। दिस इज द फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या कर रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो व्हेन इट पास थ्रू द रिफ्लेक्टिंग पार्ट डायरेक्टली पास थ्रू द फोकस, अनदर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटिव, कैसे कि बोथ आर पैरेलल लाइन्स, बोथ रेज आर क्या हो रहा है पैरेलल, पैरेलल मीन्स क्या होता है डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये एट इन्फिनिटिव। तो सो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटिव, ओके। और कैसा होगा, हाईली लार्ज है ना, सो लार्ज इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या होगा रियल एंड व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। सीन ना, कैसा फॉर्मेशन होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यू सीन ना, ओके। In previous moment also we had discussed about, sorry, yes, see, in case of the fifth position, given object placed at focus, तो formation of image at infinitive and the high size of the image highly enlarged, क्या होगा काफ़ी बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। बट इन केस ऑफ सिक्स केसेस, सिक्स पोजिशन, कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगा इमेज, कैसा होगा इनलार्ज होगा बड़ा, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, सो क्या हो जाएगा वर्चुअल होगा, काल्पनिक और इरेक्ट होगा, अंडरस्टैंड। जैसे लेट्स सी ना सिक्स केसेस, लास्ट देखिए सी द लास्ट केस, ओके, सिक्स केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेयर बिटवीन द फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू द डायरेक्टली वेयर पोल, ओके, ऑब्लिकली पासिंग थ्रू द देयर पोल, सेंटर ऑफ द है ना कनकेव मिरर, एंड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक, अंडरस्टैंड। अनदर रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द, ओके, इन्फिनिटी आल्सो वी कैन से दैट आल्सो पासिंग थ्रू द फोकस, कहाँ से पास करेगी फोकस। तो ऐसा लग रहा है कि इट सिम्स दैट है ना वर्चुअली कि एक कहाँ पास कर रहा है बैक, बैक साइड ऑफ मिरर, अगेन ये कहाँ लग रहा है कि बैक ऑफ साइड मिरर, इट सिम्स दैट प्रतीत हो रहा है। तो सो कहाँ पे होगा, इट्स है ना बोथ आर इंटरसेक्ट टू बिहाइंड द मिरर, बोथ रे, इट्स वर्चुअली है ना। तो कहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है इमेज, इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे हो रही है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, और कैसा हो रहा है इन लार्ज इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपेयर में क्या है लार्ज है बड़ा है, और कैसा है इसका नेचर, तो नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, तो क्या हो रहा है वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ओके, और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब क्या है सीधा, दिख रहा है ना, इन्वर्टेड है ये, नो इन्वर्टेड, ए बी है यहाँ भी ए बी, मतलब इरेक्ट है ये सीधा, ओके। नेचर कैसा है इरेक्ट है बट वर्चुअली है, वर्चुअली मतलब काल्पनिक, नॉट रियल, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द सिक्स केसेस एंड लास्ट केसेस, ओके, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, then the formation of image behind the mirror, okay, this is the enlarged image and virtual and erect, no problem, okay, in case of the formation of image by concave mirror, no। तो ठीक है, this is the main है ना point given by the है ना formation of image by concave mirror, understand, no problem। अब लेट्स वी डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज द यूज ऑफ कनकेव मिरर, कि यू हैव टू सीन ना कि है ना सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना इमेज में कनकेव मिरर। अब लेट्स वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द है ना यूज ऑफ कनकेव मिरर, वेयर इट इज यूज, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वेयर यू है ना वी कैन यूज दिस मिरर। तो यू आल्सो नो दैट कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेज, कहाँ पे हम यूज करते हैं टॉर्च में, जैसे टॉर्च देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कनकेव है ना, क्या होता है द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कर्व इनवर्ड, है ना, देखिए ना टॉर्च एंड लाइट, सर्च लाइट में होता है जैसे पुलिस है ना या एनी है ना
police department also है ना take this searchlights and vehicles headlight. vehicle का headlight देखे हो ना, you have to see front of the vehicles. तो vehicles का headlight जो है also use the concave mirror. Okay, get powerful parallel beams of light. जहाँ वहाँ से क्या होती है, release powerful parallel beam of light. And they are often used as saving mirror. saving mirror देखे हो ना in the है ना, ठीक है, जो आप देखे होंगे बार में है ना सैलून में, तो वहाँ पे क्या होती है कि सेविंग मिरर यूज करते हैं हम, तो अभी क्या होता है कनकेव मिरर्स. सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस, जाके वहाँ पे क्या होगा, फेस की क्या होती है इमेज लार्जर, है ना, लार्जर साइज. अंडरस्टैंड. तो द डेंटिस्ट कैन आल्सो यूज द दिस मिरर. और डेंटिस्ट, जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत को हम दिखवाते हैं, टीथ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, दे कैन है ना, दे यूज द विच मिरर, कनकेव मिरर, टू सी द लार्ज है ना व्यू ऑफ द है ना टीथ. ठीक है, कि क्या वहाँ पे कौन सा वायरस है, कीटाणु है, इस तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर टीथ. ओके, तो दे सो यूज इन कनकेव मिरर. ओके, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज इन है ना कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड सोलर फर्नेस. और सोलर फर्नेस में भी यूज होता है आपका किस में, है ना, सोलर सिस्टम में भी किसका यूज होता है, इन कनकेव मिरर, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट क्या हुए ऑब्जर्व. ओके, कॉन्सेंट्रेट सनलाइट, ताकि सनलाइट को क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट इज है ना ऑब्जर्व देयर, accumulate there, that is the है ना intersect there at a point and produce heat in solar furnaces. और solar furnaces में क्या होगा, furnace में heat को produce कर सके large amount of heat. तो so use the है ना concave mirror, large concave mirror. Understand? No problem. तो this is the main use of concave mirror. Okay, I hope you have no problem. Understand? Okay.